coming to the next topic, electric flux. Electric flux is a property of an electric field. एक पैरामीटर होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी किसी पॉइंट पर बताता है, किसी एरिया में बताता है. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर फाई एंड फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस फाई ई से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, इसीलिए वहां पर हम उसको फाई एम से डिनोट करेंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फाई ई से डिनोट करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन एरिया which is held in an electric field is the measure of number of electric field lines passing normally through it. normally को मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर, ध्यान दें, ठीक है. Look at this area A which is held in an external electric field. The number of electric field lines passing through this area would be a constant. कितना फिक्स्ड एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसमें से जो पास हो रही है. What does electric field line in an area tell us? Electric field lines in an area tell us about the strength of the electric field in that area. Suppose the number of electric field lines passing through this area is more, so I can tell that the electric field in this area is high. The strength of the intensity of the electric field in this area is high. If it is less, means the strength or the intensity of electric field in this area is less. Now let us consider a small area ds inside that sheet only. The area vector of this ds would be a vector pointing normally outwards from it, that is vector ds, and the unit vector over here would be represented by n cap. n cap means normal to the surface. n cap is normal to the surface. ठीक है. तो according to the definition of electric flux in this through this area, that is phi e, because it is a small area means we will take d phi e. What is d phi e? D phi e is the small amount of electric flux associated with this area, which according to the definition is equals to number of electric field lines passing through that area, which would be a constant because of the electric field E into vector ds. E into vector ds. अब देखो यहाँ पर जो फाई ई है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया ds is dependent upon E and vector ds, and in the definition it is measured normally. So if this area is not held perpendicular to the surface, my area over here, suppose my electric field is passing, likewise my area is held normal to the electric field, means the direction of the unit vector n and the direction of electric field is same. So therefore the theta between E and ds is equal to कितना है? 0. is equal to कितना है? 0. तो यहाँ पर जब हम लोग E डॉट ds निकालेंगे, d phi E is equal to कितना हो जाएगा? E डॉट ds. Now the component of ds acting in direction of electric field is equal to कितना हो जाएगा? cos theta. ठीक है. और ये cos थीटा यहाँ पर कितना है? थीटा कितना हो जाएगा? 0. तो E डॉट ds ही बचेगा. E डॉट ds ही बचेगा. तो d phi E is equal to E डॉट ds आ गया. Now if we have to calculate the total electric flux associated with this complete area, the total electric flux associated with this complete area would be nothing but integral d phi E is equals to integral E dot ds is equals to integral E dot ds वेक्टर फॉर्म. नाउ जब हम ये सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक क्लोज्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करते हैं. क्लोज्ड सरफेस एरिया मींस उसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालते हैं तो उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर बीच में सर्कल लगा देते हैं. दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स साइक्लिक इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल. ठीक है. तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds. दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? अगर E कांस्टेंट है तो E साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds हो जाएगा. ठीक है. नाउ एज माई एरिया वॉज हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा एरिया वेक्टर जो था वो नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड था. इस कंडीशन में मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया. फॉर सपोज अगर मेरा जो एरिया है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज
लाइक दिस, पहले की तरह, और मेरा एरिया नॉर्मल ना हो करके कुछ ऐसा अरेंज है, जहां पर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। यूनिट वेक्टर एन कैप अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूं तो ये ऐसा है, तो मेरा वेक्टर डीएस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है यहाँ पर थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से एक एंगल बना रहा है थीटा, मीन्स माई एरिया वेक्टर इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस कंडीशन में मैं यहाँ पर कॉस थीटा लगाऊंगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा डी फाई ई, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया डीएस, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस कॉस ऑफ थीटा, बिकॉज वी नो वी विल टेक दैट कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्टिंग नॉर्मल टू द एरिया, पासिंग नॉर्मल टू द एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लग रहा है वो कौन सा होगा, कॉस थीटा, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, नाउ लुकिंग एट दिस फॉर्मूला, व्हेनेवर वी आर हैविंग ए फॉर्मूला, यहां से मेरे को अगर सपोज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको मैं इंटीग्रल डी फाई को क्या लिख सकता हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द एरिया फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डीएस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रल दैट इज इट इज द अमाउंट ऑफ और द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया नॉर्मल टू इट, तो E dot ds cos theta. What are the parameters which are deciding E phi E value of flux through that area? ये हम देखते हैं यहाँ पर, that is E, दूसरा ds और थीटा। तो जब भी हम एक फॉर्मूला देखते हैं तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि हम उसको देख करके ये बताएं कि जो मेरा वैल्यू है वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली अगर एक एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई होगा तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए फाई ई भी हाई होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो नॉर्मली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग एरिया। ऑब्वियसली अगर मेरा ये एरिया, अभी मेरे पास मैग्नीट्यूड ए है मगर इसके अंदर और एक बड़ा एरिया कंसिडर करता हूँ, बड़ा एरिया ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी वो भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगी। तो एरिया जो डीएस में कंसिडर कर रहा हूँ वो अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। डायग्रामेटिकली देखते हैं, मेरे पास अगर ये एक छोटा एरिया है और ये एक बड़ा एरिया है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है वो ऐसे डिनोट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, बड़े एरिया में से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, छोटे एरिया में से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो ऑब्वियसली नंबर 2 एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। नेक्स्ट थिंग, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एरिया, दैट इज द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर ds एंड द एरिया वेक्टर ds एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जितना कम होगा नियरिंग टू जीरो, जब हम लोग यहाँ पर जीरो लिए थे एट दैट टाइम कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जीरो पर 0 डिग्री पर आती है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वैल्यू मैक्सिमम ई डॉट डीएस आ जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं कि डीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट क्वांटिटी, फाई इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और थीटा जो हो जाएगा इनवर्सली, ठीक है। अब इसको यू कैन अंडरस्टैंड कि फाई ई इज प्रोपोर्शनेट टू ई, फाई ई इज प्रोपोर्शनेट टू डीएस एंड फाई ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू थीटा।